Hare Krishna. Hare Krishna, bro. Hare Krishna. जय राधा हरे कृष्णा सभी को। तो आपको हमारे इस वीकली संडे मीटिंग में फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम हमने टेक्स्ट ट्री पे डिस्कस किया था। टेक्स्ट ट्री पे हमने देखा था कि मतलब जो ऐसा क्या 6 सर्विस है जो हमारे डिवोशनल सर्विस के लिए फेवरेबल है, जो ऐसा 6 कार्य क्या, ठीक है। तो उसमें हम लोग ने उत्साह के बारे में चर्चा किया था। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके आगे और डिस्कस करेंगे। तो सच्चिदानंद प्रभु। In all phases of life, one has to perform devotional activities under the direction of the spiritual master in order to attain perfection in bhakti yoga. It is not that one has to confine or narrow one's activities. Krishna is all-pervading. Therefore, nothing is independent of Krishna, as Krishna himself states in the Bhagavad Gita, chapter 9, text number 4. Maya tatam idam sarvam jat
जगन्नवृत्तमूर्तिना मत्स्थाने सर्वभूतानि न चाहन्ते स्वस्थितः. By me, in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. Under the direction of this bona fide spiritual master, one has to make everything favorable for Krishna's service. For example, at present we are using a dictaphone. The materialist who invented this machine intended it for businessmen or writers of mundane subject matters. He certainly never thought of using the dictaphone in God's service, but we are using this dictaphone to write Krishna conscious literature. Of course, the manufacturer of the dictaphone is wholly within the energy of Krishna. All the parts of the instrument, including the electronic functions, are made from different combinations and interactions of the 5 basic types of material energy, namely Bhumi, Jala, Agni, Vayu and Akasha. The inventor used his brain to make this complicated machine, and his brain as well as the ingredients were supplied by Krishna. According to the statement of Krishna, Matsthani Sarvabhutani, everything is depending on my energy. Thus, the devotee can understand that since nothing is independent of Krishna's energy, everything should be dovetailed in his service. Endeavor executed with intelligence in Krishna consciousness is called utsaha or enthusiasm. The devotees find the correct means by which everything can be utilized in the service of the Lord. Nirbandha Krishna Sambandhe Yuktam Vairagyam Uchate. The execution of devotional service is not a matter of idle meditation, but practical action in the foreground of spiritual life. These activities must be executed with patience. One should not be impatient in Krishna consciousness. Indeed, this Krishna consciousness movement was started single-handedly, and in the beginning there was no response. But because we continued to execute our devotional activities with patience, people gradually began to understand the importance of this movement, and now they are eagerly participating. One should not be impatient in discharging devotional service, but should take instructions from the spiritual master and execute them with patience, depending on the mercy of Guru and Krishna. The successful execution of Krishna conscious activities requires both patience and confidence. A newly married girl naturally expects offspring from her husband, but she cannot expect to have them immediately after marriage. Of course, as soon as she is married, she can attempt to get a child, but she must surrender to her husband, confident that her child will develop and be born in due time. Similarly, in devotional service, surrender means that one has to become confident. The devotees think of Avyasa Dakshive Krishna. Krishna will surely protect me and give me help for the successful execution of devotional service. This is called confidence. As already explained, one should not be idle but should be very enthusiastic about executing the regulative principles. Tatat Karva Pravartana. Neglect of the regulative principles will destroy devotional service. In this Krishna conscious movement, there are 4 basic regulative principles: forbidding illicit sex, bed eating, gambling, and intoxication. A devotee must be very enthusiastic about following these principles. If he becomes slack in the following any of them, his progress will certainly be checked. Srila Rupa Goswami therefore recommends Tatat Karva Pravartana. One should strictly follow the regulative principles of Vaidhi Bhakti. In addition to these 4 prohibitions, Yama, there are positive regulative principles, Niyama, such as daily chanting of 16 rounds on Japamala beads. These regulative activities must be faithfully performed with enthusiasm. This is called Tatat Karva Pravartana, or varied engagement in devotional service. Furthermore, in order to be successful in devotional service, one must give up the association of undesirable people. This includes karmis, jnanis, yogis, and other non-devotees. Once Sri Chaitanya Mahaprabhu was asked by one of his householder devotees about the general principles of Vaishnavism as well as the general routine activities of the Vaishnava, and Sri Chaitanya Mahaprabhu immediately replied, Asat Sangha Tyaga, a Vaishnava Achara. Characteristically, a Vaishnava is one who gives up the association of worldly people or non-devotees. Srila Narottama Dasa Thakura has therefore recommended Tandera Chadani Sevi Bhakta Sanevas. One has to live in the company of pure devotees and execute the regulative principles laid down by the previous acharyas, the 6 Goswamis, namely Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Jiva Goswami, Sri Raghunatha Dasa Goswami, Sri Gopal Bhatta Goswami, and Raghunatha Bhatta Goswami.
If one lives in the association of devotees, there is little chance of associating with non-devotees. The International Society for Krishna Consciousness is opening many centers just to invite people to live in the company of devotees and practice the regulative principles of spiritual life. Devotional service means transcendental activities. On the transcendental platform, there is no contamination by the three modes of material nature. This is called Visuddha Sattva, the platform of pure goodness, or goodness free from contamination by the qualities of passion and ignorance. In this Krishna consciousness movement, we require everyone to rise early in the morning by 4 a.m. and attend Mangalarti or morning worship, then read Srimad Bhagavatam, perform Kirtan and so forth. Thus, we hold continuous activities in devotional service 24 hours daily. This is called Satovritti, or following in the footsteps of the previous acharyas who expertly filled every moment of time with Krishna conscious activities. तो पिछले संडे में भी हमने डिस्कस किया था, है ना। ज़्यादातर प्रभुपाद जी का थोड़ा मूड एंड मिशन कैसा चाहते हैं प्रभुपाद जी कि मतलब भक्त उनके सोसाइटी में किस प्रकार से रहे, है ना, मिल करके अच्छे से। तो ये प्रभुपाद जी बोल रहे थे। फिर आज को फिर किस प्रकार भक्ति करेंगे। आज को ऑलमोस्ट सभी जो 6 कंपोनेंट है उनके बारे में हमने ये जो प्रभुपाद का परपट में हमने पढ़ा ना, उत्साह के बारे में, निश्चय के बारे में, और धैर्य और तत्त कर्म प्रवर्तना, और फिर संगत त्याग और सतोवृत्ति। तो ये 6 कंपोनेंट के बारे में हम सभी ने पढ़ा। तो एक एक करके हम लोग जो प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ पर, इस हिसाब से हम लोग एक एक करके थोड़ा डिस्कस करते हैं जहाँ तक हमने पढ़ा। तो स्टार्ट में तो क्या मतलब प्रभुपाद जी जो हम लोग डिवोशनल सर्विस जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं वो हमें गुरु के आश्रम में रह करके, है ना, करने के लिए प्रभुपाद जी प्रेरित कर रहे हैं। हाँ, जिससे कि मतलब हमारा विम्सिकल बिहेवियर, है ना, कम हो या विम्सिकल बिहेवियर ख़त्म हो जाए। इसीलिए प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम लोग गुरु के आश्रम में रह करके ही भक्ति करना चाहिए, भक्ति करें। और आगे कुछ प्रभु जी आप ऐड करेंगे। तो इसके आगे में एक और श्लोक आता है, ये चैप्टर गीता चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 4 पे। इधर में बताया गया है कि भगवान कृष्ण हर जगह पे रहते हैं और हर जीवों पे रहते हैं। यूनिवर्स में जितना भी हम लोग देख सकता है, नहीं तो जितना भी जगह हम लोग ले ले वहीं पे भगवान कृष्ण रहता है। लेकिन बोला है कि उधर पे रहने के साथ साथ उस पे हम लोग मैं डिपेंड करके नहीं रहता हूँ, डिपेंड करके नहीं रहता हूँ, मैं अलग सभी रहता हूँ, इंडिपेंडेंट भी रहता हूँ। तो इसके चलते हुए इधर में बताया गया कि एक उदाहरण दिया है कि जो प्रभुपाद जी के समय में वो डिक्टाफोन इस्तेमाल किए थे। तो डिक्टाफोन इस्तेमाल किए थे। तो डिक्टाफोन बनाने वाला जो व्यक्ति है उसने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग के भगवान के सेवा में भी लगाएंगे, कभी भगवान की सेवा में लगाएंगे। लेकिन ये वो भी क्या बोले, जो भी डिक्टाफोन बना रहा है वो भी कृष्णा की एनर्जी है। कृष्णा की एनर्जी है। और ये जो भी डिक्टाफोन बनाने पे चीज़ें इस्तेमाल किया गया है वो सब भी कृष्णा की एनर्जी है। और साथ साथ में जो भी डिक्टाफोन बनाने वाला व्यक्ति, उसका बुद्धि और जो भी उसका शक्ति एनर्जी है सब भगवान से आया हुआ है, वो भी बताया गया है इधर पे। तो हम लोग ये इससे पता चलता है कि कृष्ण पे सब निर्भर होता है और सब कृष्ण की एनर्जी है। और इसमें थोड़ा सा प्रभुपाद जी का भी मूड हम समझ सकते हैं ना, कि डिक्टाफोन तो प्रभुपाद जी ने बताया है एक एग्जांपल, क्योंकि उस समय में अभी भी वृंदावन में जो प्रभुपाद हाउस है वहाँ पर वो डिक्टाफोन है जो प्रभुपाद जी यूज़ करते थे। तो उसमें प्रभुपाद जी रिकॉर्ड करते थे और फिर डिवोटी लोग सुन करके उसको टाइप करते थे, है ना, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो प्रभुपाद जी टाइम सेव करने के लिए डिक्टाफोन यूज़ करते थे। तो कृष्ण के सर्विस में ज़्यादा सर्विस करने के लिए जो चीज़ भी आवश्यकता है ना, हमें वो सब यूज़ करना चाहिए, है ना, कृष्ण के सर्विस में। क्योंकि
जैसे अभी आपने सच्चिदानंद प्रभु ने बोला ना कि हर चीज़ कृष्ण की एनर्जी है ना, हर जगह कृष्ण है। जो जिस पर्सन ने वो इन्वेंट किया वो उसका दिमाग भी है ना कृष्ण पे डिपेंडेंट है। हाँ, तो ये सब सभी कॉम्बिनेशन क्या है कि कृष्ण की वजह से ही है। तो हम लोग का जो हमारा जो सर्विस करते हैं, या जो भी हम जो भी चीज़ हमारे पास है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ये 100% कृष्ण के ही सर्विस में लगे करके, है कि नहीं। अभी देखिए गाड़ी भी कृष्ण के सर्विस में लग रहा है, हर चीज़ कृष्ण के सर्विस में लग रहा है ना। वाईफाई बोलो या फिर जो भी मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह हर चीज़ कृष्ण के सर्विस में लगा रहे हैं। तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। प्रभुपाद जी भी यही चाहते थे कि हर चीज़ हाँ कृष्ण के सर्विस में ही लगना चाहिए प्रॉपरली करके। और हम लोग डेली जो भी तो जितना भी काम करता है हाँ जी। वो सब भी भगवान के नज़दीक पे आने का सब व्यवस्था करना चाहिए। और इससे फिर एक और चीज़ क्या हमारे सोसाइटी में क्या बेनिफिट होता है कि जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, है ना, तो फिर जिनको ऐसे सब चीज़ों पे आसक्ति है, जैसे मोबाइल में कुछ भी कि कुछ देखने में, रील देखने में, कुछ में भी आसक्ति है, तो हम लोग यदि ऐसे रील स्पिरिचुअल रील बनाएंगे, ऐसे कुछ बनाएंगे, तो वो लोग भी और कनेक्टेड फील होंगे, है ना। किसी को कुछ खाने का ज़्यादा इच्छा है, खाने में आ सकता है मटेरियलिस्टिक लोग, तो जैसे अगर हमारा गोविंदास है तो उसमें अच्छा अच्छा प्रसादम बनाएंगे तो वो अट्रैक्ट होंगे, और कहीं ना कहीं से वो लोग फिर मंदिर में कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसे कुछ चीज़ों से करके, है ना, कुछ चीज़ों से अट्रैक्ट होकर के मंदिर में कनेक्ट हो जाते हैं। कोई संगीत में आ सकती है तो अच्छा कीर्तन सुन करके मंदिर में कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग उनको ये सब चीज़ यूज़ करके उनको भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोगों को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं कृष्ण के प्रति। जैसे हम लोग पे अभी स्कूल में पढ़ाता है, तो स्कूल में पढ़ाता है तो वही काम को हम लोग स्पिरिचुअल के साथ पढ़ाएं, जैसे कि क्या होता है बच्चों को जब सिखाते समय बीच बीच में हम लोग भगवान के बारे में बोल के उन लोगों को एग्जाम्पल देके सिखा सकते हैं। सिखा सकता है। हाँ, बीच बीच में मैंने भी ट्राई किए थे। और हाँ, बच्चे हैं इंटरेस्टेड, जैसे बच्चे भी है निकलता है और सवाल पूछता है, तो ऐसा करके हम लोग जितना भी फील्ड पे है, जितना भी जो हम लोग कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग कृष्ण की तरफ कैसा लाए और कृष्ण के सर्विस पे कैसा फेवरेबल बनाए, हम लोग ऐसा हम लोग सोच के कर सकता है। और प्रभुपाद जी भी यही चाहता है कि हम लोग ऐसा करें। तो इसमें आगे ये भी बताया गया है कि जो डिवोटीज होते हैं ना, वो मतलब देखते हैं कि हर चीज़ जो है ये मतलब कृष्ण की सर्विस में लोग कैसे उसको उपयोग में ला सकते हैं। मतलब हमेशा वो ट्राई करते हैं कि उसके पास कुछ भी चीज़ हो या मटेरियल जो भी थिंग है, जो भी आजकल इनोवेशन होता है, वो सब मतलब कैसे हम लोग मतलब भगवान की सेवा में यूटिलाइज कर सकते हैं उसको। और जैसे कि हम लोग ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो डिवोशनल सर्विस है ये मतलब बस एक आइडल मेडिटेशन नहीं है, बस बैठ के ध्यान करना, वो नहीं बताया गया है। ये एक फोरग्राउंड एक्टिविटी है, मतलब इसमें एक्टिविटी एक होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। जो भी हम लोग सेवा करते हैं, तो जो भी हम लोग जो कार्य जो एग्जीक्यूट करते हैं ये भगवान की सेवा में, वो हम लोग एकदम मतलब पेशेंट के साथ करना चाहिए और उत्साह होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम लोग एक तो जब तक उत्साह नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ टाइम के लिए करेंगे फिर छोड़ देंगे उसको। मतलब एक हम लोग एक रूटीन या फिर उसको एक मतलब हम लोग एक लाइफ में एक उसके करिकुलम बना के चलना चाहिए। और उत्साह पेशेंस इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमेशा हम लोग ऐसे जब भी हम लोग स्कूल जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, लोग हर चीज़ को मिलने के लिए अपने गोल को अचीव करने के लिए थोड़ा पेशेंट होना चाहिए। समय लगता है। तो इसलिए हम लोग जब हम लोग की जो डिवोशनल सर्विस में भी जब हम लोग अपना डिवोशनल सर्विस जब कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आज का अभी कर रहे हैं तो कुछ दिनों बाद एकदम से हम लोग को सब समझ में रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके लिए भी टाइम लगता है। इसमें एक और क्योंकि पेशेंट होना इसलिए भी ज़रूरी है कि रिजल्ट है ना डिवोशनल सर्विस में बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि जैसे मैं स्टार्टिंग में मंदिर आता था तो बहुत आनंद आता था, फिर अभी क्या हो गया ऐसे ऐसे करके, तो वैसे रिजल्ट दिखने के लिए कुछ समय लगता है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया ना कि कोई एक फीमेल है, कोई एक वाइफ है जो अपने हस्बैंड से यदि सरेंडर करती है, उसके बाद जा कर के वो मतलब गर्भवती हो सकती है, उसके बाद में फिर वो कंसीव कर सकते हैं, मतलब बच्चे को जन्म दे सकती है।
अब वो वहीं पर बिना पेशेंट के नहीं मुझे आज ही बच्चा चाहिए या कल ही बच्चा चाहिए, ये तो फिर पॉसिबल नहीं है ना। रिजल्ट के लिए मतलब अच्छे रिजल्ट के लिए हमें कुछ समय वेट करना चाहिए विद पेशेंस, वो वेट होना चाहिए। तो इसीलिए वो पेशेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर पेशेंस और फिर वो अपने जो हस्बैंड के प्रति कॉन्फिडेंट होकर के, है ना, निश्चय के साथ कॉन्फिडेंट होकर के वो उस पर मतलब सरेंडर करती है कि अच्छा ये मेरा जो इच्छा है, जो मेरे नेसेसिटीज़ है वो पूर्ति करेगा करके। जैसे प्रभुपा जी एक छोटा कोट भी करते हैं, अवश्य रक्षी वे कृष्ण विश्वास पालन, है ना। तो फिर वो ऐसे ही जिस प्रकार वो फीमेल वो जो लड़की है उसको विश्वास होता है अपने पति के प्रति, तो हमें भी है ना भगवान के प्रति उसी प्रकार विश्वास होकर के कॉन्फिडेंट के साथ में हमें सरेंडर करना चाहिए कि उसके बाद ही हमारा जो डिवोशनल सर्विस है वो भी और इन्हांस होता जाएगा और हमें थोड़ा एलिवेट पोजीशन एलिवेट होते जाएंगे धीरे धीरे करके ना। लेकिन ये कॉन्फिडेंट और पेशेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भगवान के प्रति और जो रिजल्ट के प्रति पेशेंस होना। वैसे ये पेशेंस है, ये हम लोग मतलब एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग के मतलब इसमें मूवमेंट में ही देख सकते हैं। प्रभुपाद के एग्जांपल लेके जब प्रभुपाद सबसे पहले विदेश गए थे, अमेरिका गए थे, तो वो अकेले थे, सिंगल हैंडेड थे। लेकिन उनको मतलब एक तो वो उनका पेशेंस था और दूसरा उनका मतलब विश्वास गुरु और कृष्ण के ऊपर। तो हम लोग को एक तो पेशेंस होना चाहिए और साथ में एक उत्साह होना चाहिए और मतलब कि मतलब हम लोग को गुरु और कृष्ण के ऊपर ना विश्वास करना चाहिए, तभी मतलब हम लोग आगे मतलब कार्य में अपने डिवोशनल सर्विस में बढ़ सकते हैं। एक तरीके से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि पेशेंस रखने के लिए हमको कुछ टॉलरेट भी करना पड़ता है। पेशेंस और टॉलरेट साथ साथ में चलता है। हम लोग पेशेंस करते हैं, बहुत समय क्या बोलेंगे, हम लोग भक्ति जो कर रहा है वो क्या होता है कुछ समय के बाद अच्छा हो सकता है, नहीं तो बहुत लंबे के समय के बाद भी थोड़ा सुधर ला सकता है, क्योंकि हम लोग का क्या बोलेंगे आचरण के हिसाब से और हम लोग कितना एफर्ट डालते हैं उसके हिसाब से। तो जो भी हो हम लोग एफर्ट डालते समय बहुत सारा कठिनाई भी आ सकता है, लेकिन उसको टॉलरेट के साथ साथ पेशेंस हम लोग को धैर्य रखना है और जो भी गुरु बताया गया है नियमों का पालन करना वगैरह वगैरह जो जितना है उसको टॉलरेट, जितना भी कठिनाई आएंगे और उसमें भी टॉलरेट करके विद पेशेंस हम लोग को एंडेवर करना चाहिए। और ये क्या बोले भगवान हम लोग को हमेशा रक्षा करेंगे उसका भाव भी रखना चाहिए, क्योंकि ये क्या बोलते इंसान है कभी कभी होपलेस हो जाता है, वो भक्ति करते करते ना कभी उसके क्या बोलेंगे कष्ट होता है और साथ साथ में आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है उसका हमेशा हेजिटेशन होता है। तो उसी समय क्या होना चाहिए कि ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भगवान हम लोग के लिए रक्षा, हम लोग जो भी कर रहा है उसको देख रहा है और वो हमारे रक्षा भी करेंगे। तो जितना भी हम लोग कठिनाई है उससे हम लोग को रक्षा करेंगे, उसका भी भाव रखना चाहिए बहुत। तो फिर रूपा जी आगे बोलते हैं कि तत्त कर्म प्रवर्तना मतलब जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल है ना, उसको फॉलो करना और फिर उत्साह और उसको फिर कनेक्ट करना है कि उत्साह के साथ इसको मतलब हाँ उत्साह के साथ इसको पालन करना, उत्साह के साथ इसको फॉलो करना, दैट इज तत्त कर्म प्रवर्तना, है ना। तो जैसे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, ऐसे करना है ऐसे नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स है ना, यम नियम ये सब पालन करना है। तो प्रभुपाद जी ने उसके बारे में बोला है और उसको भी उत्साह के साथ में ये पालन करना है करके बोला है प्रभुपाद जी। और फिर प्रभुपाद जी फुल जो हमारा 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है उसको फुल लिखते भी है कि नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, है ना, नो मीडिएटिंग करके। तो फिर ये फुल लिखते भी है प्रभुपाद जी। और डिवोटी मस्ट बी इंथुसियास्टिक, मतलब उसको उत्साह होना चाहिए बट फॉलोइंग द प्रिंसिपल, है ना। क्योंकि थोड़ा सा भी हम लोग इसमें थोड़ा सा भी ढीला दिखाएंगे तो फिर फॉल डाउन होंगे। हाँ वो क्या होता है ये 4 नियम के साथ साथ भी वो चांटिंग डेली चांटिंग भी करते हैं, वो भी उत्साह के साथ। और आगे लिखा भी है कि ये आई गेस ये पॉइंट हमने टेक्स्ट 2 में भी डिस्कस किया था कि मतलब जब हम लोग वर्ल्डली माइंडेड पर्सन के एसोसिएशन संघ में रहते हैं तो हम लोग को डिवोशनल सर्विस वीक हो जाता है। हम लोग को वो मतलब
डोंट्स में था वो। उसमें था तो इसमें डूस में भी ये आया है कि हम लोग को कुछ अपने होना चाहिए हाँ करके। डिवोशनल सर्विस हमको बढ़ाने के लिए हम लोग को ये अनडिजायरेबल पीपल जो वर्ल्डली माइंडेड पर्सन है अनडिजायरेबल पर्सन है पीपल है वो लोग का संग त्यागना चाहिए। और फिर उनका संग त्याग करके फिर एक और कोट भी किए थे प्रभुपाद जी ने कि तादर चरण से भी भक्त सने वास, है ना, मतलब भक्त के साथ में वास करना चाहिए, उनको उनका संग को त्याग करके बोले। इधर में भी बताया गया कि हम लोग गोस्वामी लोगों को जो दिया गया है, छह गोस्वामी हैं। हाँ 6 गोस्वामी लोग ने दिया गया है, उसका नियम पालन करने वाले भक्त लोग, नियम पालन करने वाले भक्त लोग वही के संग करना चाहिए। और आगे में भी बताया गया है कि जो भक्त के संग में होता है अपने आप ही वो जो बाहर का संग है ना उससे धीरे धीरे करके वो कम होती जाएंगे, कट होता जाता है। कम होता जाता है। और फिर ये भक्त के संग में रहने का जो भी एक और क्या बेनिफिट है कि जितना भी चीज़ हम लोग जो टेक्स्ट 1 से लेके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, हर चीज़ हम चेक में रहते हैं कि फिर उत्साह में भी है ना, निश्चय भी है, कॉन्फिडेंट है भगवान के ऊपर, और फिर धैर्य भी है। अगर कुछ भी हो जाता है फिर भक्त ये करते हैं, अरे चिंता मत करो हो जाएगा करके, भक्त लोग पंप अप करते हैं हमें, है ना। और फिर जो वाचो वेगम मनसो वेगम जितना ये हर चीज़ जितने भी है ये इसी में टिका हुआ है, एसोसिएशन में टिका हुआ है। आपका जब हमारा मंगलारती, हमारा फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल, और जितना भी है ये 6 ये फोर्सेस है ना, और जो भी 6 प्रकार के डोंट्स है टेक्स्ट 2 में, वो हर चीज़ ये भक्त के संग में ही डिपेंडेंट है कि हम लोग इन भक्त के संग में रहेंगे कॉन्स्टेंटली, तो फिर ये सब चीज़ हमारा चेक में रहेगा कि हम लोग सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, है ना। इसीलिए संगत त्याग करके मतलब उनके लिए मतलब उनको ऐसे लोगों के साथ हमें संगत त्याग करना चाहिए। और वो करता है बहुत सारे लोग ये साधु संघ के बारे में, साधु संघ करते सर्व साधु बहुत सारे संघ, वही तो होता है। एक मोमेंट का भी हम लोग साधु का संग करेंगे तो सर्व सिद्धि वही सभी सिद्धों का हम लोग मिल जाता है। और हम लोग एक श्लोक का वो कहते हैं आदो श्रद्धा तथा साधु संग बोलते हैं। हाँ हम लोग शुरू में थोड़ा फेक होना चाहिए, उसके बाद हम लोग क्या करना चाहिए साधु संग। तो साधु संग ही सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तब जाके हम लोग जितना भी नियम नीति बताया गया है उसको उत्साह के साथ करने का भी इच्छा करेंगे। जब साधु संग नहीं होगा तब तो उत्साह भी अपने आप ही धीरे धीरे होता जाएगा, कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। वही है। और फिर जो सत्ववृत्ति है वो अंतिम में बोलता है कि जो हमारे प्रीवियस आचार्य है उनके टीचिंग्स को फॉलो कर, मतलब उनके फुट स्टेप में चलना। तो उसी के लिए प्रभुपाद जी ने प्रीवियस आचार्य में षड गोस्वामी को बहुत मतलब 6 जो हमारे 6 गोस्वामी से उनका पूरा नाम लिखा है, श्री गोस्वामी सनातन गोस्वामी के साथ में नाम लिखा है कि इनकी जो टीचिंग्स है, हाँ जो इन्होंने जो टीचिंग्स दिया है इनके टीचिंग्स को फॉलो करके और फिर डिवोशनल सर्विस परफॉर्म करना। क्योंकि ये लोग एग्जाम्पल है ना कि किस प्रकार हम लोग डिवोशनल सर्विस को मतलब इनके स्टेज में तो हम लोग नहीं पहुंच सकते, लेकिन कुछ एग्जाम्पल के द्वारा बताया है कि मतलब कैसे क्लोज थे ये लोग भगवान के साथ, जैसे भगवान के साथ इन लोग का डायरेक्ट कनेक्शन था, भगवान के साथ डायरेक्ट ये लोग बात करते थे हमारे गोस्वामी लोग। तो फिर मतलब उनसे इंस्पिरेशन लेकर के धीरे धीरे हम लोग भी आगे बढ़ना और फिर उनके फुटस्टेप फॉलो करना, चाहे नियम पालन करना हो, चाहे उनके शास्त्र पढ़ना हो, है ना, उन्होंने जो चीज़ रिकमेंड किया है उसको फॉलो करना हो, तो उस हिसाब से हमें करना चाहिए। तो है ना, क्योंकि वो लोग कभी भी उनके लाइफ से हम देख सकते हैं कि कभी भी वो लोग टाइम वेस्ट नहीं करते। तो चैतन्य चरितामृत में एक जगह आता है कि जब भी कोई जो महाप्रभु के जितने भी एसोसिएट्स हैं वो वृंदावन जाके आते थे तो फिर महाप्रभु पूछते थे कि रूप सनातन क्या कर रहे हैं करके। तो फिर और फिर वो लोग जवाब देते थे कि वो लोग मतलब ज़्यादातर समय मतलब राइटिंग करते हैं, है ना, संग करते हैं, जप करते हैं, भक्ति करते हैं, और फिर बहुत कम समय सोते हैं, मतलब 2 आवर 3 आवर भी नहीं सोते हैं, उससे कम ही सोते हैं, लेस देन 2 आवर इसके आसपास वो लोग सोते हैं करके। तो फिर महाप्रभु वो सब सुन करके बहुत खुश होते थे, ये नहीं बोलते थे कि अरे टेक केयर ऑफ योर हेल्थ या ऐसे कुछ करके ना, महाप्रभु कभी ऐसे नहीं बोलते थे। महाप्रभु उल्टा खुश होते थे कि अच्छा ये लोग इतना है ना वैराग्य के साथ ये कर रहे हैं करके,
तो मतलब इससे इससे हमें समझना चाहिए कि जो उनका सिद्धांत था कि एवरी प्रभुपा जी ने भी यहाँ पर लास्ट में जो हमने पढ़ा था उसमें लिखा है ना, आचार्य हु एक्सपर्टली फिल्ड एवरी मोमेंट ऑफ टाइम विद कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज़, है ना, हर चीज़ उनका कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी का ही है। और जब वो सोते थे उसमें भी वो ऐसे आइडल सोना नहीं, वो स्वप्न में भगवान के साथ, है ना, वो सपना भी कुछ ना कुछ भगवान का ही आता था उनके साथ में, है ना। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं हमने सुना कि वो लोग सपने में जाकर के कुछ खा लिए और असल में ही पेट खराब हो गया, शायद रघुनाथ दास गोस्वामी का ऐसा था। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं ना, तो वो एक सेकंड भी वो लोग मतलब मटेरियल चीज़ से वो लोग फील नहीं करते थे, एवरीथिंग वाज फील्ड विद उनका टाइम हर चीज़ पैक्ट था कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज़ से। तो उससे हमें थोड़ा टीचिंग लेकर के, है ना, और फिर सत्व व्यक्ति मतलब उनको फुट स्टेप फॉलो करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने भी हम लोग के स्कूल में भी इतना जो भी नियम सेट किया है वो भी हम लोग को जो पूरा एंगेज करने पे टोटली क्या बोलेंगे कैपेबल हो जाए, हम लोग जो जितना भी डिवोटी है उसका पूरा क्या बोलेंगे वातावरण बनाया। जैसे कि जिन्होंने बताया 4 बजे उठ के मंगलारती, उसके बाद हम लोग चांटिंग करता है, नॉर्मली चांटिंग करता है, उसके बाद छूट जाएंगे, बातों का सुनेंगे, प्रसादम पाएंगे, और अगर उसके बाद तो जितना भी डिवोटी है वो तो रेडी की सेवा होती है, सेवा जाएंगे, नहीं तो डिस्ट्रिब्यूशन जाता है, और नहीं तो कीर्तन भी जाता है, बहुत सारा इंगेजमेंट है वो करता है। तो रात तक वही इंगेजमेंट पे पड़ा रहता है, तो रात के सोते समय भी वो भगवान का ही याद आएंगे, क्योंकि वो जितना भी समय जो पिछले वाला था वो सब भगवान के साथ ही बिताए, मतलब भगवान के सेवा भी बिताए। तो ऐसा ही इसमें कुछ स्टेप्स बोला है ना, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आचार्यों का उसका नकल नहीं करना है, हाँ नकल नहीं करना है, जो लोग वो करता है उससे ही करना है, हाँ वो लोग जो बोल रहा है वही को ही फॉलो करना है, हम लोग उसका नकल कभी नहीं कर सकते। एक तरीके बोला है ना, प्रभु जी ने बोला था कि सबको सामने लोग क्या करता है, रात को 1-2 घंटा ही सोता है, और बाकी समय सब शास्त्र का चर्चा करता है और भगवान के बारे में चर्चा करते हुए सब समय रहता है। और सबको सामने स्तर में बोला था ना, निद्रा हार विहार का विजित, हाँ फिर बताया कि वो लोग सोने खाने में वो उस क्या होता है विजय पा लिया है, मतलब वो लोग कंट्रोल कर सकता है, उसको सोने का भी कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसा हम लोग तो नहीं कर सकता कभी भी, तो हम लोग क्या कर सकता है, जो लोग वो बताया गया है वहीं पे हम लोग फॉलो करना चाहिए। रूपा जी ने बताया है वही हम लोग कभी बेसिक प्रिंसिपल्स है, 4 प्रिंसिपल्स है, और चांटिंग करना, उसके अलावा बहुत सारा है जैसे मंगलारती उठना, भागवतम पढ़ना, गीता पढ़ना, और बहुत सारे कार्य हैं, वहीं पे हम लोग फॉलो करके जाएंगे तो हम लोग ये कृष्ण कॉन्शियसनेस आगे बढ़ते ही जाएंगे, उत्साह भी आएंगे साथ साथ भक्त संग के साथ साथ। ऐसे हम लोग ने इस इंट्रोडक्शन में भी हम लोग ने देखा था कि जो हमारी जो कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट है ये रूप गोस्वामी के सुपरविजन में है, इसलिए हम लोग जितने भी कृष्ण कॉन्शियस में जुड़े हैं, या मेन हम इसको मान लीजिए हम लोग को रूपायन का बोलते हैं, फॉलोअर्स ऑफ रूप गोस्वामी। और फिर जैसे प्रभु जी लोग ने बोला कि वो लोग निद्रा वगैरह खाने वगैरह में लोग विजय पा लिए, इसलिए वो लोग गोस्वामी थे। तो इसलिए प्रभुपाद ने भी बोला है कि हम लोग को मतलब गोस्वामी बनने का प्रयास करना चाहिए, गोदास नहीं। जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन में भी चर्चा किया था, फिर इधर भी आया है, तो ये सब में मतलब हम लोग को ज़्यादा, क्योंकि ये 2-3 बार यही चीज़ मतलब रिपीट होते रहता है, तो हम लोग को इसमें मतलब प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया है इस बात पे ना, तो हम लोग को ये अच्छे से मतलब पालन करना चाहिए सब। और अगर हम लोग जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, अगर उसको ही हम लोग अच्छे से पालन करेंगे, तो ये सब मतलब हम लोग धीरे धीरे करके ये सब मतलब हम लोग इस जैसे गोदास नहीं बनना, ये सब हम लोग अचीव कर लेंगे ना धीरे धीरे करके। अगर हम लोग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में ही मतलब कुछ थोड़ा ढीला करेंगे उसमें, या कुछ उसमें एक्सक्यूज देंगे ऐसे कुछ नहीं करने का, तो फिर मतलब हम लोग का आगे भी हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे, सीधा हम लोग का डाउन ठीक है। फिर हम लोग इधर ही समाप्त करते हैं आज का संगम। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आई गेस आज हम लोग का उत्साह भी हो गया, और उत्साह में हमने आज फिर और डिस्कस किया था आगे, निश्चय भी हो गया, सब हाँ सब हो गया।
उसमें बाद में प्रभुपाद जी और कुछ दिए हैं वो हाँ वो डिस्कस हम नेक्स्ट संडे में ठीक प्रयास करेंगे कि थर्ड थर्ड टेक्स्ट भी खत्म हो खत्म जाए। हो जाए ठीक है हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण की की जय। जय, श्री गोपाल की जय। कृष्ण Next